बेरीज फिफ्थ स्टैंडर्ड सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश स्टोरी द फ्लूट प्लेयर आज हम देखने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो को देखते हैं। Kamla's grandmother lived on the outskirts of the city of Jaipur. Big yellow buses, cars, motorcycles and bullock carts passed down the main road in front of the house. The steady flow of traffic seemed to form a barrier between the city on one side of the trunk road and the distant sleepy villages on the other. From the flat roof of the house, Kamla could see the fields of millet, wheat and cotton stretching away for miles. Finally, 2 days before she went to Delhi to board a plane for London, Kamla made up her mind to cross the road. That afternoon, her grandmother was asleep and the maidservant was in the bazaar. Kamla quietly slipped out of the back door. Her slippers kicked up dust as she ran down the path to the main road. Kamla ran through the dust, past the jacaranda trees that lined the road and into the fields. Suddenly the world became an enormous place, mysterious and exciting and just a little frightening. Far to her left were a few trees and the low white huts of a village. Some distance away, Kamla could see a camel moving round a well, drawing up water for the fields. There must be someone here, thought Kamla, walking towards a mango tree that grew a few yards away. Ripe mangoes dangled like globules of gold from its branches. Under the tree, fast asleep, was a boy. All he wore was a pair of dusty white shorts. His body had been burnt dark by the sun. His hair was tousled, his feet chalky with dust. He was a thin boy with long bony legs. Kamla came nearer, peering at him with some curiosity, for she had not seen a village boy before. Her shadow fell across his face. The boy opened his eyes and stared at Kamla. "Who are you?" he asked a little gruffly. "I'm Kamla. I've come from England, but I'm really from India. I've come home to India, but I'm really from England." A little confused, she countered abruptly. "Who are you?" "I'm the strongest boy in the village," answered the boy. "My name is Romy." Kamla noticed a flute lying on the grass. "Is that your flute?" she asked. "Yes," said Romy. "It is an old flute, but the old ones are best." "And who taught you to play it?" "Nobody. I learnt by myself. Shall I play it for you?" Kamla nodded, and they sat down on the grass, leaning against the trunk of the mango tree. Romy put the flute to his lips and began to play. It was a slow, sweet tune, a little sad, a little happy, and the notes were taken up by the breeze and carried across the fields. There was no one to hear the music except the birds and the camel and Kamla. Kamla watched Romy while he played, and the boy smiled at her with his eyes and ran his fingers along the flute. When he stopped playing, Kamla stood up to leave. "When will you come again?" asked Romy. "I will try to come next year," replied Kamla. "Promise?" "Promise." Romy put the flute in her hands and said, "You keep it. I can get another one." "But I don't know how to play it," said Kamla. "It will play by itself," said Romy. Romy watched her until she was just a speck in the distance. Then he turned and shouted at the camel, telling it to move faster. But the camel did not even glance at him. It just carried on as before, round and round and round the well. चलिए अभी इसी स्टोरी को हम हिंदी में भी सुन लेते हैं। अ फ्लूट
प्लेयर मतलब बांसुरी बजाने वाला। ये है कमला की दादी माँ, जो घर के बरामदा में, जो गांव है सिटी जयपुर से थोड़ा आउटसाइड में सिटी है, वहाँ पे ये बैठी हुई है अपने बरामदा में, और रास्ते से जाने वाली येलो कलर की बड़ी बड़ी बसेस को वो देख रही है। मोटरसाइकिल्स है, बुलेट कार्स है, जो उस मेन रोड से आती जाती रहती है, और ये उसका सीधा घर के सामने ही है। तो वो आराम से वहाँ बैठे बैठे इन सबको ट्रैफिक को देखती रहती है। ये हमेशा चलने वाली जो ट्रैफिक है, ये एक एक बैरियर की तरह, मतलब कैसे ये जो रास्ता है ये सिटी को जोड़ने वाला भी है और विलेज को भी जोड़ने वाला है। और आप देख सकते हैं कि ये जो है थोड़े डिस्टेंस पे एक, आप देख सकते छोटा सा गांव, दूसरे साइड में, एक साइड में सिटी है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा रहती है। ये कमला है, ये कमला भी यहाँ पे बैठी हुई है और ये दूर दूर तक खेतों को देख रही है, जहाँ पे उसे ज्वार, बाजरा, गेहूँ, कॉटन के ही खेत चारों और सभी जगह पे उसे दिख रहे हैं, मतलब अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं है। और एंडिंग में को लंदन का एरोप्लेन पकड़ने के लिए दिल्ली 2 दिन के पहले ही उसे जाना था, और वहाँ पे दिल्ली से वो लंदन की ओर जाने वाली थी। तो कमला ने मन ही मन में सोच लिया कि मैं एक बार इस रोड को क्रॉस कर दूंगी, और मौका मिल गया। उसी दिन आफ्टरनून के टाइम में, दोपहर में, ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ सो गई, और उस घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट जो थी वो बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए चली गई थी। कमला घर में अकेली थी। वो चुपके से पिछले दरवाजे से बाहर निकल पड़ी, और ये देख सकते वो निकली है। अब उसने जल्दी जल्दी धीरे धीरे चोरी चोरी चुपके चुपके मेन रोड को क्रॉस करके, जो पाथ होती है, जो पैरों से चलने वाला जो रास्ता है, वहाँ से उसने चलना शुरू कर दिया। अब मेन रोड तो नहीं है, मतलब डस्ट बहुत होगी, तो वो डस्ट एरिया से जा रही थी, तो उसके शूज़ ख़राब हो गए थे। ये उस लड़की के पीछे आप देख सकते हैं जैकरांडा। जैकरांडा टी मतलब होता है नीला गुलमोहर। तो रास्ते के आजू बाजू में पेड़ होते हैं, यहाँ पे इन्होंने लगाया है नीला गुलमोहर, और ये वाला वर्ड उसने कभी नहीं देखा है। ऐसा विलेज, ऐसे एटमॉस्फियर, ऐसे रोड, ऐसा जो डस्टी रोड है, वो उसने इंग्लैंड में कभी नहीं देखा, लंदन में कभी नहीं देखा था। वो बहुत एक्साइट थी और थोड़ी थोड़ी डरी हुई भी थी। वो घर से बहुत दूर तक आ चुकी थी। रास्ते से उसे थोड़े से पेड़ अब दिख रहे थे जहाँ पे वो थी, और उसे झोपड़ियाँ नज़र आ रही थी जो वाइट कलर में थी, और उसकी हाइट भी कम थी। थोड़ा सा डिस्टेंस और चलने के बाद उसने देखा कि एक ऊंट जो है, ये बड़े से गोल राउंड को बांधा गया था, और वो जैसे ही गोल घूमता था तभी ऑटोमेटिकली जो कुआं है वहाँ से पानी निकल के खेत में उसको दिया जा रहा था ऑटोमेटिकली। तो कमला ने ये सारी एक्साइटिंग चीज़ें देख ली, और आगे कोई है क्या ऐसे देखने के लिए जा रही थी, तभी उसे एक आम का पेड़ नज़र आया, और उस आम के पेड़ पर बहुत सारे पके हुए आम लदे बदे थे हर ब्रांचेस पे। तो ये तो गोल्ड के जैसे लग रहा था, और आप देख सकते हैं कि पैरट भी उसके ऊपर बैठे हुए हैं, और दूर से देखने पर ये गोल्ड के जैसे दिख रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक लड़का गहरी नींद में सोया हुआ था। उसने देखा ये लड़की ने गंदी से वाइट कलर की धोती पहनी हुई थी और शर्ट बिल्कुल नहीं पहना था। उसकी बॉडी जो है ये धूप के कारण जल चुकी थी, मतलब वो काले रंग का हो चुका था। उसके बाल जो है वो घुंघराले हो गए थे, और उसके पैर जो है ये चप्पल नहीं पहन के थे तो बहुत डस्टी हो गए थे। उसके ऊपर बहुत डस्ट और काला काला हो गया था। वो अच्छा सा मोटा सा लड़का था, उसके पैर भी बड़े लंबे और मोटे मोटे थे। वो एक स्ट्रॉन्ग बॉय की तरह था। कमला उसे घूरती हुई देख के क्यूरियोसिटी के साथ वो उसके पास जाने लगी थी। वो कौन है वो जानना चाहती थी। जब उसने देखा कि ये विलेज बॉय, मैंने पहले तो कभी नहीं देखा है, उसने कभी नहीं देखा था, लंदन में कहाँ होते हैं विलेज बॉय। तो वो उसके पास जा रही थी, तब उसकी शैडो उस बॉय के चेहरे पर पड़ी, और उसने जैसे ही वो शैडो पड़ी तब वो आँख उसने खोल दी बॉय ने, और वो घूर घूर के कमला को देखने लगा।
तुम कौन हो? उस बॉय ने उसे पूछा। आवाज में थोड़ा सा गहरापन था। लड़की ने बोला, मैं कमला हूँ, मैं इंग्लैंड से आई हूँ और मैं तो यही की हूँ, इंडिया की ही हूँ। मन में वो खुद ही कंफ्यूज थी कि ये मैं क्या बता रही हूँ कि मैं तो इंडिया आई थी, अब रियल में मैं तो इंग्लैंड की हूँ, इंग्लैंड में रहती हूँ, लेकिन इंडिया आई थी, अब बाद में चली जाऊँगी। वो खुद भी कंफ्यूज थी उसके आंसर से, उसे क्या बताओ उस बॉय को। तभी उसने सोचा कि जाने दो, छोड़ दो यार। वो लड़की ने उस लड़के को पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने नाम नहीं बताया, लेकिन वो बोला कि मैं इस गांव का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय हूँ, बलवान बच्चा हूँ, मेरा नाम रोमी है। लड़की ने उसे देखा, नीचे देखा तो उसे एक बांसुरी नजर आई जो उसने अपने पैरों के पास घास में रखी हुई थी। ये बांसुरी तुम्हारी है, तुम बजा लेते हो? उसने पूछा। वो लड़का बोला, रोमी, हाँ, ये मेरा पुराना सा बांसुरी है और पुरानी बांसुरी ही बहुत अच्छे से रहती है, चलती है, आवाज़ करती है। ये भी इन्फॉर्मेशन रोमी ने बता दी थी। ये तुम्हें बजाना किसने सिखाया है? कमला ने पूछा। रोमी बोला, किसने नहीं सीखा, मैंने अपने आप ही सीख लिया है, मैं तुम्हें भी सिखा सकता हूँ। रोमी बोला। कमला ने हाँ, ऐसे खाली मुंडी हिलाई और वो नीचे तुरंत घास में बैठ गई। वो लड़का भी बैठ गया। बैठने के बाद दोनों मस्त से वो लड़का उस पेड़ का जो ट्रंक है उसके ऊपर लेट गया और उसने तुरंत वो बांसुरी अपने लिप्स से लगा के उसको बजाना शुरू कर दिया। मस्त से सुरीली आवाज़, थोड़ी सी दर्द भरी, थोड़ी सी हैप्पीली आवाज़ वो उस बांसुरी में से निकाल रहा था और धीरे धीरे वो बजा रहा था। उस बांसुरी को सुनने वाले जो थे वो वहाँ का ब्रिज था और वहाँ के जो फील्ड्स है चारों ओर उसकी आवाज़ आ रही थी। वो लड़की, वो बर्ड्स, वो कैमल, इसके सिवा वो म्यूज़िक और वहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं था। लड़की रोमी की तरफ देख रही थी। कमला, ये कैसे बजा लेता है? बजाते समय वो अपनी आँखों से ही उसे बीच बीच में स्माइल दे रहा था। वो अपने फिंगर्स उस बांसुरी के ऊपर से हिला हिला के वो उसका आवाज़ निकाल रहा था। वो रुक गया, फिर उसने कमला खड़ी हो गई, वो भी खड़ा हो गया। कमला ने उसे बाय करने के लिए खड़ी हो गई थी। रोमी बोला, फिर तुम कब आओगी? कमला बोली, नेक्स्ट ईयर ज़रूर आ जाऊंगी, मैं ट्राई करूंगी मिलने के लिए, आने की कोशिश करूंगी। लड़का बोला, प्रॉमिस? कमला ने देखा खाली। रोमी ने अपना बांसुरी अपने हाथ से लिया और उसको दिया और बोला, ये अब तुम ही रखो, मेरे पास दूसरी मैं कर लूँगा अरेंज। लेकिन मुझे कहाँ बजानी आती है ये बांसुरी? कमला ने बोला। तब बॉय ने बोला, अरे अपने आप ही बज जाएगी, तुम एक बार ट्राई तो करना। रोमी ने उसे आंसर दिया। रोमी उसे देख रहा था और वो लड़की उससे जा रही थी दूर, बहुत दूर डिस्टेंस तक गई, फिर भी वो उसे देख रहा था। उसने देखा वो कैमल आराम से वहाँ से चल रहा था और वो बहुत सारी स्टोरीज वो शाउट कर रहा था और जल्दी जल्दी भागो करके, लेकिन कैमल उसका कहना कहाँ मानने वाला था। उसने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं, वो बॉय क्या चिल्ला रहा है। वो अपनी अपनी स्टाइल में चल रहा था, धीरे धीरे कुएं का पानी निकल रहा था और खेतों में जा रहा था। ये मेरी प्यारी सी स्टोरी है। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद।